This is the first lecture on physical geography of Odisha. I am Swarup and welcome. Geography गोटे एमती सब्जेक्ट जहाँ को आप स्टैटिक जीके भाया नोट्स मन रखी पढ़ी पारे ना आपण को मैप रो अंडरस्टैंडिंग दरकार एडवांस अंडरस्टैंडिंग नहले भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दरकार आमे मैप थ्रू रे आज फिजिकल जियोग्राफी पढ़िबा किछि पोर्शन देखिबा एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल सी a drastic difference in your understanding of geography of Odisha. So let's begin. এই lecture ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ମ୍ୟାପ୍ ବହୁତ ଦରକାର ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ ତିନିଟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୁପରେ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ତିନିଟା ମ୍ୟାପ୍ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। different district thibo political map download karibe. The second map is the river map of Odisha. The third one is topographic division of Odisha. ए तीनटा मैप आग डाउनलोड करंतु तापरे आमे वीडियो रे कंटिन्यू करिवा। प्रथमे आमे किछि बेसिक जिंस देखिदबा। ओडिसा रा पोजीशन होची बिटवीन 1749 नॉर्थ एंड 2234 नॉर्थ लैटिट्यूड, 8127 ईस्ट and 8729 east longitude. ए नंबर्स गुड़ाक इंपोर्टेंट एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चन एथुर पके दिए। ओडिसा रा कोस्ट लाइन इज अबाउट 450 किलोमीटर्स and there are 7 coastal districts in Odisha, namely Baleshwar, Bhadrak, Kendrapada, Jagatsinghpur, Puri, Khordha and Ganjam. Area of Odisha is 1.5 lakh square kilometers. The precise value is given here. North-south Odisha is 800 kilometers long and east-west Odisha is 500 kilometers wide. The area of Odisha is 4.87% of the total national area, that is the area of India, and the area of India is 3.28 million square kilometers. 1 million is 10 lakhs. So you can calculate how much is that. Now this 3.28 million square kilometers includes 1.2 lakhs square kilometers of area that is under the illegal occupation of Pakistan and China. Area wise, Odisha is the 8th largest state in India and Rajasthan is the largest one. The population of Odisha is 4.19 crores and that is 3.47% or 3.5% of the population of India. Population wise, Odisha is the 11th state and UP is the number 1. The population density of Odisha is 269 persons per kilometer square. The national number is 382. The urban population accounts for roughly 17% of Odisha. The sex ratio is 979. The national sex ratio is 943 per 1000. Now let's look at the literacy rate. The female literacy rate of Odisha is 64.01%. while the national is at 64.63%. The male literacy rate is 81.59%. For national, that is, the number is 80.88%. The total literacy rate of the state is 72.87%. The national literacy rate is 72.98%. Odisha has 30 districts, 58 subdivisions, 314 blocks, 317 tehsils. All these numbers are based on government of Odisha data, so please do not follow any other sources or resources. Climate of Odisha is of tropical climate. The state experiences 150 centimeters of average annual rainfall. There are 6 seasons in Odia and 12 months. You all already know this. आगको पढ़ा पूर्वर आपण जदि मैप तीनटा जो तीनटा मैप कही डाउनलोड करना बर्तमान वीडियो पॉज करी आउ थे कहूँ डाउनलोड करंतु एवं तापरे वीडियो कंटिन्यू करंतु. द फर्स्ट वन इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ ओडिशा, द सेकेंड इज द रिवर मैप ऑफ ओडिशा, द थर्ड इज द टॉपोग्राफिकल डिवीजन ऑफ ओडिशा. एबे कंटिन्यू करिवा जदि डाउनलोड कर देइचंती कंटिन्यू करिवा. मु आ गोटे छोटा जिनस आपण रिक्वेस्ट करिवे, आपण गोटे ब्लैंक पेपर रे ओडिशा रो गोटे रफ डायग्राम ए भलिया पॉलिटिकल डायग्राम ड्रॉ कर दियंतु. आपण को डिस्ट्रिक्ट डिवीजन करिवार नहीं, बहुत एक्यूरेटली भी ड्रॉ करिवार नहीं, बट रफली गोटे ड्रॉ करंतु आपण बहुत सुविधा हबो.
एबे देखंतु ओडिसा रो पॉलिटिकल मैप है एटा आपण डिस्ट्रिक्ट मानकर पोजीशन रफली जानिबा दरकार एग्जैक्टली जानिबा दरकार नहीं रफली जानिबा दरकार जेमते आपण जानिबा दरकार सुंदरगढ़ अछि ऊपर बौद्ध डिस्ट्रिक्ट एठी सेंटर रे रहउछि कंधमाल एठी कोरापुट एठी मालकानगिरी नवरंगपुर एंड सो ऑन तो आपण वीडियो पॉज करी 5 सेकंड 10 सेकंड पॉलिटिकल मैप देखि दियंतु नेक्स्ट इज द रिवर मैप इज वेरी important for you need to remember the rough river diagram. You don't need to remember them exactly. You need to have a rough idea of the rivers that are flowing in Odisha, the major rivers. The minor rivers are not of great importance. एठी मु किछि जिंस आपनको कहि रखे एई मैप रे केते गुडे जिंस भूल अछि बट आपनको रिवर मैप एग्जैक्ट रिवर मैप मिलिबा भी कष्ट we have tried it is very difficult to get so we have to work with what we have got. वर्तमान ए रिवर मैप रे किछि इंपोर्टेंट रिवर जो गुडाक आज आमे पढ़िबा भितर दरकार ताकू ड्रॉ करी देखि दउछि आपण रिवर सिस्टम पय आदौ व्यस्त होंतुनी जियोग्राफी ओडिशा जियोग्राफी रो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन रिवर सिस्टम मु ही करिवि बहुत सुंदर भाबरे बुझेबी बट आज रो लेक्चर पय जो जो 4-5 टी रिवर हमको इंपोर्टेंट से 4-5 टा मु ड्रॉ कर दउछि जो रिवर टा मु एठी रेड रे मार्किंग करछि से रिवर रो ना होछि सुवर्ण रेखा आपण मने रखंतु तार ना से लेखिनी मैप रे ए रिवर टा होछि सुवर्ण रेखा. नेक्स्ट दिस वन इज बुढ़ाबलंग. This river is Salandi. That is not very important to us, but this river here, this is very important because this is the river Baitarani. Next, this river is Brahmani. Okay, let me draw it again. This river is Brahmani. This is Sankha, and this is Koel. The right river, this one is Koel. This, as you all know, is Mahanadi. This river that is not marked, this one, this is Rusikulya. This river is Bangsadhara, and here this one is written Sabari, but Kolab river flows very close to the Sabari river, so we will call it the Kolab river, right? This river is the Tel river, Tela Nadi, and this one right here, this is Eve river. These are the important rivers. You take a screenshot of this and you please save it. Now you have a basic idea of which river is where. Now we will understand what is topographic division. तो ओडिशा को जदि आमे टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन देखिबा ताहले को बेसिस रे क्लासिफाई करायछि ताको आमे जानिबा दरकार. प्रथम हला जियोमॉर्फोलॉजिकल बेसिस. जियोमॉर्फोलॉजी कहिले हमर सॉइल रो ओरिजिन तार क्लासिफिकेशन ए बेसिस रे जदि आमे क्लासिफिकेशन देखिबा मॉर्फोलॉजी माने आरंभ केमिति तयारी हला तो सेही बेसिस रे ओडिसा को पांचटा मॉर्फोलॉजिकल रीजन रे डिवाइड करा हैछि. गोटे हला ओडिशा कोस्टल प्लेन, नेक्स्ट इज मिडिल माउंटेनियस एंड हाईलैंड रीजन, सेंट्रल प्लेटूस, वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड्स एंड मेजर फ्लड प्लेन. प्लेन दी प्रकार गोटे हला कोस्टल प्लेन गोटे हला फ्लड प्लेन. एटा हला जियोमॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट है फिजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. फिजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन रे कोन हिची ओडिसा को जनरली तीनटा रीजन रे डिवाइड करा हिची. गोटे हला कोस्टल प्लेन, गोटे मिडिल माउंटेनियस कंट्री एंड द प्लेटू ये गोटिए, आ गोटे हला रोलिंग अपलैंड. फिजियोग्राफिकली माने जदि आमे रिलीफ आउ स्लोप रो कथा कहबा दैट इज फिजियोग्राफी. रिलीफ माने होची उच्चता आ स्लोप माने केते तीखा अछि. जियोमॉर्फोलॉजी मु आपन कहिथिली एग्रो क्लाइमेटिक कृषि भित्तिक क्लाइमेट जदि आमे देखिबा ताले ओडिसा को 10टा एग्रो क्लाइमेटिक जोन ने डिवाइड करा जायछि. तो एबे मु आगु को बढ़िया पूर्व आपन गोटे रफ आइडिया दे दिए जे आमे ओडिसा को केमती डिवाइड करूचे. मालकानगिरी रो नै कि मयूरभंज पर्यंत आपन को रहला ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट एमती गोटे लाइन नाही स्प्रेड हे कि अछि. तेनो एई रीजन टा को पूरा कहंती मिडिल माउंटेनियस रीजन. पूरा स्टेट रो 3/4 75% केवल ए मिडिल माउंटेनियस रीजन कवर करछि. तेणु एतिकी नुहे मु आपन डायग्राम रे सिंपलीफाई कर देखि देछि. एक्चुअली ए जाय रहइबो ए कोस्ट को लागि कि कोस्ट आ मिडिल माउंटेनियस कंट्री भितर रहला कोन कोस्टल प्लेन. तेणु ए जो जगाटा रहला टू बी प्रिसाइज एटा हला कोस्टल प्लेन. मिडिल माउंटेनियस कंट्री रो एठी दीटा साइड रे एठी गोटे एठी दीटा प्लाटू अछि. प्लाटू माने टेबल लैंड. गोटे पहाड़ जदि आमे देखुचे एमती
जदि गोटे पहाड़टा एमती हेतिबो ता ऊपरटा फ्लैट हेतिबो ताकू आमे कहूचे प्लाटू। तो दीटा प्लाटू अच्छी आमर ओडिशा रे, एठी गोटे आ एठी गोटे मु आपन मार्किंग कर देखि देछि। केते गुडा जगह रे तीनटा प्लाटू बोली देखा जाए, एई जगह रे गोटे प्लाटू बोली ड्रा कर दियंती, बट आमे हमर बुझिया पे पढिया पे एई दीटा प्लाटू को ही रिकॉग्नाइज करबा। ओडिशा रे आमे जानले प्रथम रहला माउंटेनियस रीजन, एपट रहला कोस्टल प्लेन, एठी रहला दीटा प्लाटू। ताले एई जगह गुडा कोन देखंतु, एठी जो माउंटेन अछि एठी उच्चता अधिक अछि, एठी प्लेन आछि माउंटेन हला, एठी दीटा टेबल लैंड रहला दीटा प्लाटू, आ एपटे जेतिकी एरिया रहला एई जो जहा बाकी रहला एगुड़ाक कहउचंती रोलिंग लैंड। रोलिंग लैंड माने जो गुड़ाक प्लाटू ठू कम उंचा किंतु फ्लैट सरफेस नुहे, सेटा उच्चा नीचा हेथिबो, ऑन्डुलेटिंग सरफेस हेथिबो। ओडिशा रे बहुत गुडे रिवर आमे देखिले एठी बहिछि एमती बहिकी जाइछि, एमती बेसिकली रिवर रो प्रोफाइल आम ओडिशा रे एमती अछि। जत्ते बेले गोटे रिवर जीवो एठी पहाड़ अछि, एठी रोलिंग लैंड अछि कि एठी प्लाटू अछि, जत्ते बेले गोटे पहाड़ अछि ता भितर देई गोटे रिवर जीवो तो कौन करियो से एमती पहाड़ गोटे अच्छी ता भितर जदि गोटे रिवर गला से पहाड़ को काटिदेव, काटिकी एई जो जगहटा केमती हेजिवो ना टिके फ्लैट हेजिवो, एमती हेजिवो तापर एपटे एमती हेकी एमती हेजिवो। तो एई जो जगह रे रिवर गला एई दी साइड रे सिल्ट डिपोजिट हेकी एगुड़ाक हेगला प्लेन समतल भूमि, किंतु ए समतल भूमि ऑलरेडी हायर ग्राउंड रे अछि। देखंतु जो रिवरटा एई पटे जाइथिबो ता दी कड़े जो फ्लैट ग्राउंड हेथिबो से ऑलरेडी हायर एलिवेशन रे अछि, तो ताको आमे कहले कोन जेहेतु रिवर द्वारा सिल्ट डिपोजिट हे कि से प्लेन हेछि ताको कहले फ्लड प्लेन। तो आमे ओडिशा को बेसिकली पांचटा टोपोग्राफिक डिवीजन रे डिवाइड करले। गोटे हला मिडिल माउंटेनियस कंट्री, एई मझी पूरा 3/4, तापरे एठी कोस्ट को लागी कि रहला कोस्टल प्लेन आउ टिके चौड़ा हबो, एपटरे दीटा प्लाटू रहला एठी गोटे आ एई पटरे जो जगह रहला आमे ता कहले रोलिंग लैंड। तापरे नई जोठी गला ता दी साइड रे जो प्लेन हे गला ताको आमे कहले फ्लड प्लेन। आपन को आईडिया हे गला। नेक्स्ट आमे ता विषय रे डिटेल्स देखिबा। सो फर्स्ट वी विल लुक एट द कोस्टल ओडिशा कोस्टल प्लेन। दिस एरिया मार्क्ड इन ब्लू is Odisha coastal plain. This plain belongs to post tertiary period. आपण एटा मन रखंतु एग्जाम रे डायरेक्ट पढ़ी जिवो। This belongs to the post tertiary period. A coastal plain ए जो नालीटा देखुचंती मिडिल माउंटेनियस कंट्री, कोस्टल प्लेन और मिडिल माउंटेनियस रीजन या भीतर ए जो डिवाइड लाइन टा एटा होची 75 मीटर कंटूर लाइन। कंटूर माने एलिवेशन बा हाइट, तेणु एटा होची 75 मीटर रो एलिवेशन वाला जो लाइन टा अछि दैट इज द डिवाइड लाइन बिटवीन कोस्टल प्लेन्स एंड मिडिल माउंटेनियस रीजन। कोस्टल प्लेन कोठु को जाय गला ऊपरे वेस्ट बेंगल बॉर्डर रू एठी सुवर्णरेखा रिवर जाइछि, तळे ऋषिकुल्या रिवर पर्यंत तळे गला बा गंजाम पर्यंत। तो या भितर को रिवर आछे ए कोस्टल प्लेन ने बा को रिवर मिसिकी ए कोस्टल प्लेन बनेचंदी नॉर्थ रू साउथ जाए सुवर्णरेखा, बुढ़ाबलंग, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी एंड ऋषिकुल्या। ए 6टा रिवर रो ना आपण मन रखिबे। ए 6टा रिवर रो डेल्टा मिसिकी तयारी हेची ओडिशा कोस्टल प्लेन। ए 6टा रिवर जतले बहिले समुद्र पाखरे सिल्ट डिपोजिट करले, किछि लैंड फॉर्म तयारी करले, दैट इज कॉल्ड डेल्टा बा त्रिकोण भूमि। ए डेल्टा मिसिकी हेला ओडिशा कोस्टल प्लेन। ए 6टा रिवर रो कंट्रीब्यूशन जोगु ओडिशा कोस्टल प्लेन को कहा जाए गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स बा हेक्सा डेल्टाइक रीजन। हेक्सा माने 6टा डेल्टा रु हेची हेक्सा डेल्टाइक रीजन। 6टा रिवर रो नाम मन रखंतु आउथरे सुवर्णरेखा, बुढ़ाबलंग, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी एंड ऋषिकुल्या नॉर्थ रू साउथ ऑर्डर रे। तो ए कोस्टल प्लेन को आमे डिफरेंट टाइप रे डिवाइड भी करि परिबा। प्रथम हैला जदि नॉर्थ रू साउथ देखिबा कोस्टल प्लेन को 3 भाग रे डिवाइड करि परिबा। प्रथम हैला सुवर्णरेखा एंड बुढ़ाबलंग प्लेन अप टू बैतरणी। बैतरणी रिवर जाए नॉर्थ रू बैतरणी रिवर जाए जदि आमे देखिबा ए एरियाटा कहा जिवो नॉर्थ कोस्टल प्लेन, दैट इज द कंबाइंड डेल्टा ऑफ सुवर्णरेखा एंड द बुढ़ाबलंग अप टू रिवर बैतरणी। नेक्स्ट आसिला मिडिल कोस्टल प्लेन, एटा रहला नॉर्थ कोस्टल प्लेन, तापर रहला मिडिल कोस्टल प्लेन कंबाइंड डेल्टा ऑफ बैतरणी, ब्राह्मणी एंड महानदी। बाकी तळे जोटा रहला ताको आमे कहले साउथ कोस्टल प्लेन।
साउथ कोस्टल प्लेन में कौन कौन रहा ऋषिकुल्यार गोटे बहुत छोट डेल्टा अच्छी ऋषिकुल्यार बड़ डेल्टा ना कहीं आम रिवर सिस्टम पढ़ला बेले पढ़ा ऑफशोर करेंट अधिक थाए ऋषिकुल्यार डेल्टा ना आउ टिके चिलिकार टिके प्लेन अच्छी चिलिका लेक रफली ए जगह अच्छे तो चिलिकार प्लेन और ऋषिकुल्यार डेल्टा मिसिकी है साउथ कोस्टल प्लेन रो विड्थ जमती आपन देखि पारथिबे सबुठो अधिक होची ए मझिरे ऊपर नैरो आउ साउथ रे होची नैरोएस्ट नॉर्थ कोस्टल प्लेन टाको आमे बालेश्वर प्लेन कहू आ कोस्टल प्लेन रो विड्थ टा को रिवर डेल्टा रे मैक्सिमम मन रखंतु महानदी रो डेल्टा रे कोस्टल प्लेन रो विड्थ होची मैक्सिमम तो मैक्सिमम विड्थ आपन कोठी देखाउची एठी देखाउची सो दिस एरिया इज द महानदी डेल्टा ऊपर टाको कहा जाय बालेश्वर प्लेन तळ टाको कहा जाय गंजाम प्लेन आ नैरोएस्ट को प्लेन टा मन रखंतु साउथ कोस्टल प्लेन बा गंजाम प्लेन आउ गोटे क्लासिफिकेशन जोटा जनरली आमे देखिबा को पाउनु बट एग्जाम रे बेले बेले ए क्लासिफिकेशन नु क्वेश्चन पकई दे से क्लासिफिकेशन होची ए कोस्टल प्लेन को जदी आमे पैरेलली तीनटा स्लाइस करियो देखो मु रफली ए कोस्टल प्लेन टा को एठी ड्रा कर दोची ओके याकू जदी मु तीन भाग रे विभक्त करिवे एमती एपटे रहिला मोर बे ऑफ बेंगल एपटे रहिला मिडिल माउंटेनियस रीजन आ ए जो बाउंड्री टा को बाउंड्री 75 मीटर कंटूर लाइन मु आपन कहिछि एबे ए रेड पूरा रेड भीतर रहला कोस्टल प्लेन याकू मु तीन भाग कर देली 1 2 एंड 3 तो कोस्ट रु आथिले आमे जोटा प्रथमे देखिबा ताकू कहा जाय सॉल्ट ट्रैक्ट SALT सॉल्ट ट्रैक्ट आपन नोट्स रे सब दिन लिखा है पाई जिवे सॉल्ट ट्रैक्ट यार विड्थ होची 4.8 रु 9.6 किलोमीटर केमती एठी देखंतु विड्थ कम एठी देखंतु विड्थ अधिक तेणु आपन जदी बे ऑफ बेंगल रु डंगारे आछंती आपन आग जो जिनसटा देखिबे बा जो पार्टटा देखिबे ताकू कहा जिवो सॉल्ट ट्रैक्ट ए सॉल्ट ट्रैक्ट रे महानदी रो डेल्टा माने ए वाइडेस्ट एरिया ए जगहटा एठी टाइडल फॉरेस्ट अछि आ ए जगहटा को कहा जाय लिटिल सुंदरबन एटा पारादीप धामरा कोस्ट रो पाखा पाखी अछि सेमती ए सॉल्ट ट्रैक्ट रे देवी दया सेक्टर रे आपन को बहुत झाऊ गछ देखिबा को मिले से एग्जाम रे पचार दे पारे सॉल्ट ट्रैक्ट रो को नदी रो डेल्टा टाकू लिटिल सुंदरबन कहा जाय महानदी डेल्टा तो फर्स्ट डिवीजन जदी हैला सॉल्ट ट्रैक्ट नेक्स्ट को कहा होची अराबल ट्रैक्ट ARABLE अराबल ट्रैक्ट TRACT एटा होची एग्रीकल्चर दृष्टि ओडिसा रो सबुठो इंपोर्टेंट जगह एटा मन रखंतु अराबल ट्रैक्ट इज द रिचेस्ट पार्ट ऑफ द ओडिसा सो फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न तेणु याकू राइस कंट्री ऑफ ओडिसा बोली भी कहा जाए लास्ट पार्ट हैला ए जो थर्ड पार्टटा एटा कहा जाए सब माउंटेन ट्रैक्ट दिस इज आल्सो नोन एज द जोन ऑफ ट्रांजिशन कहीं के ना ए जगह रे कोस्टल प्लेन टारू आमे ट्रांजिशन करचे माउंटेनियस रीजन को एबे मत लागुचे आपनकर कोस्टल प्लेन क्लियर हो जाइथिबो जहा क्वेश्चन आसीबो ए भितरु आसीबो नेक्स्ट इज द मिडिल माउंटेनियस एंड हाईलैंड रीजन्स आज ए लेक्चर रे आमे जहा भी इंपोर्टेंट जिनस पढ़िबा से सबुरो नोट्स PDF नोट्स इंस्टीट्यूट रो व्हाट्सएप ग्रुप रे अवेलेबल रहिबो डिस्क्रिप्शन ने जॉइन करिया पे इनविटेशन लिंक आपन को अच्छी आपन जॉइन करंतु पाई परिबे जदी आपन टिके लेट रे जॉइन करचंती PDF पाई नाहंती तबे ग्रुप रे लिखंतु मु लेट रे जॉइन करछि PDF पाइनी बोली आपन को ए नोट्स आ प्रीवियस सब नोट्स प्रोवाइड कर दिया जिवो सो दिस एज यू कैन सी दिस रेड एरिया दिस इज द मिडिल माउंटेनियस एंड हाईलैंड रीजन दिस कवर्स द 3/4 ऑफ द एंटायर स्टेट फिजियोग्राफिकली दिस इज द लार्जेस्ट एरिया एग्जाम रे आपन को डायरेक्ट क्वेश्चन पचारिबो लार्जेस्ट एरिया टोपोग्राफिकली बा फिजियोग्राफिकली कोटा सेटा होची मिडिल माउंटेनियस रीजन भूले भी कोस्टल रीजन मारी के आसीबेनी केते एरिया कवर करछि स्टेट रो 3/4 दिस मिडिल माउंटेनियस रीजन इज ए पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला व्हिच इज ए पार्ट ऑफ द एंशिएंट लैंड मास ऑफ गोंडवाना लैंड जो एंशिएंट लैंड मास थिला गोंडवाना तार पार्ट होची ए मिडिल माउंटेनियस रीजन टा It mostly comprises the hill and mountains of Eastern Ghat. The middle mountainous region, as you can see, this runs parallel to east coast. ऊपर नॉर्थ ईस्ट रे मयूरभंज रो साउथ वेस्ट रे मालकानगिरी पर्यंत मिडिल माउंटेनियस रीजन रहिछि दिस डिवाइड्स द कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम द रोलिंग अपलैंड सो दिस एरिया इन येलो इज रोलिंग अपलैंड्स
This area in blue is your coastal plain. The division is middle mountainous region. A middle mountainous highland region रे generally tribal population आम राज्यर सर्वाधिक अछंती. ए middle mountainous region रे बहुत गुडे river flow करिकी valley आ flood plain तैयारी करछि. मु आपनको valley आ flood plain कोन कहि दैथिली आ थरे कहि दउछि. जदि आपनकर माउंटेन एम्ति रहिछि या भितर रिवर फ्लो करिवो आ फ्लो रो स्पीड बहुत अधिक अछि ताले से कोन करिवो धीरे धीरे ए माउंटेन को इरोड कर दबो खोली दबो. खोलिला परे ए माउंटेन एम्ति किछि हेजो एम्ति अछि एठु टिके फ्लैट हेजो तापर एपुटे फ्लैट हेजो एठी हेजो. तो ए एरिया टाको आमे कहले फ्लड प्लेन आ ए पूरा एरिया टाको कहले वैली. एवरेज एलिवेशन एवरेज हाइट ए मिडिल माउंटेनियस रीजन होची 900 मीटर्स. एटा 900 मीटर्स एटा मने रखंतु आपण. मिडिल माउंटेनियस रीजन नो एवरेज हाइट होची 900 मीटर्स. एग्जाम रे डायरेक्ट पके दो. मिडिल माउंटेनियस रीजन नो क्लासिफिकेशन जनरली हमकु दरकार पड़ेनी किंतु आपण टिके रफ आइडिया रखि थांतु सेथिपाई मु कहि दउची. यार क्लासिफिकेशन एग्जाम रे जनरली पड़ेनी तथापि मु खाली गोटे रफ आइडिया आपण कहि दउची. मिडिल माउंटेनियस रीजन को आमे 5 सेकंड ऑर्डर क्लास रे डिवाइड करि परिबा. तो केमती डिवाइड करिवा एमती एमती डिवाइड करिवा 1 2 3 4 and 5. राइट. द फर्स्ट इज द इंटरफ्लो ऑफ द सुवर्णरेखा बुढ़ाबलंग एंड बैतरणी. ए जो रीजन टाको कहा जाए शिमिलीपाल एंड मेघासनी माउंटेन रीजन. एठी अछि मयूरभंज फयूरभंज एई पट एरिया रे अछि शिमिलीपाल एंड मेघासन बा मेघासनी जहा कहंतु मेघासनी माउंटेन्स. एटा कोठी अछि सुवर्णरेखा बुढ़ाबलंग बैतरणी एई ऊपरु नै कि ए नॉर्थ रु नै कि पाखा पाखी ए पर्यंत ए रीजन टा कहउचंती फर्स्ट क्लास. सेकंड हला द रेंज बिटवीन बैतरणी एंड ब्राह्मणी. एठी जदि बैतरणी बहिला एठी ब्राह्मण रहला या भितर रेंज टा एटा होची को ग्रुप मांकड़ नाच मलयगिरी गंधमार्दन माउंटेन ग्रुप. फर्स्ट आम थिला शिमिलीपाल मेघासनी ग्रुप. सेकंड हला मांकड़ नाच गंधमार्दन ग्रुप. थर्ड हला द लो डिवाइडिंग रेंज बिटवीन ब्राह्मणी एंड महानदी. एठी ब्राह्मण रहले एठी महानदी जीवो. या भितर रेंज टा हला ए जो माउंटेन रेंज टा पूरा रहउची एटा हला लो रेंज. काहे कि ना ब्राह्मणी आ महानदी दीटा जांको खरस्रोता नदी सेते से माने खोली खोली की ए एरिया टार एवरेज एलिवेशन कमे की पाखा पाखी 600 मीटर कर देचंती. दिस इज द लोएस्ट एरिया इन द मिडिल माउंटेनियस रीजन. द फोर्थ वन इज द डिवाइडिंग रेंज बिटवीन महानदी ऋषिकुल्या एंड ऋषिकुल्या वंशधारा. तो एठी महानदी गले एठी जीव आपनकर ऋषिकुल्या एंड वंशधारा. तो ए जो रीजन टा रहिछि एटा को हमर कुहा होछि सुवर्णगिरी पंचधार माउंटेन रीजन. लास्ट हला कोटा ना नागावली आ सबरी रिवर आ सबरी तेल कैचमेंट. तेणु ए जो तल को जो हम पळै आसे एपट एरिया टाको एटा कुहा होछि कोन चंद्रगिरी एंड पोटांगी माउंटेन्स. मिडिल माउंटेनियस रीजन विषय रे आउ किछि दिन आपन कहि दे. डायरेक्टली एथरो एग्जाम रे क्वेश्चन पडिबनी किंतु रिलेटेड क्वेश्चन जदि किछि पड़ला आपन माने करि परिबे. जो रीजन को आज आम ईस्टर्न घाट बोली कहूचे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट वाज फ्लैट. से रीजन रे जो रिवर फ्लो करथिले से माने ए डायरेक्शन में फ्लो करथिले दैट इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू टेक्टोनिक शिफ्ट द रीजन फ्रॉम छोटा नागपुर इंक्लूडिंग दिस रेड हाइलाइटेड एरिया हियर अप टू तमिलनाडु इन द साउथ ए पूरा रीजन टा 300 मीटर एलिवेट हो गला. जितेबाला ए पूरा रीजन 300 मीटर एलिवेट हो गला ओडिशार सबु मेजर रिवर 300 मीटर एलिवेशन को क्रॉस कले एवं निज फ्लो मेंटेन कले. सब्सिक्वेंटली आउ दीटा स्टेज रे ए रीजन टा 600 आउ 900 मीटर को एलिवेट हो गला. आमे जानिचे मिडिल माउंटेनियस रीजन रो एवरेज एलिवेशन होची 900 मीटर. किछि रिसर्चर क्लेम करंती ए 900 मीटर को एलिवेशन टा तीनटा स्टेज रे हिची 300 600 900. किछि जण कहंती एटा दीटा स्टेज रे हिची. जितेबाला 900 मीटर आमे पहुँचुचे मोस्ट ऑफ द रिवर्स से माने 900 मीटर मार्क टाको क्रॉस करि पार नहंती. ताकू आमे सिंपली बुझिया पय एमती बुझि परिबा जदि गोटे रिवर टा एठी फ्लो करथला तार रास्ता रे गोटे पहाड़ पळे आसिला ताले ए रिवर आइदर ए माउंटेन रीजन टाको क्रॉस करिवो और डिस्कनेक्ट हे जिवो. जो दुईटी रिवर ओडिसा रे 900 मीटर मार्क को क्रॉस करि आछंती से माने होचंती महानदी आ ब्राह्मणी. ताकू छाड़ले बैतरणी ऋषिकुल्या बुढ़ाबलंग वंशधारा नागावली ये सब रिवर निज हेड वाटर ठू अलग हो जाइछंती. ताकू आमे कहूचे बी हेडिंग ऑफ रिवर्स. जो रिवर गुड़ाक बी हेड हो जाइछंती
तांकर हेड वाटर माने ए रीजन वाटरटा आउ गोटे नई द्वारा आउ गोटे रिवर द्वारा कैप्चर हो जाइए से रिवर परे फ्लो करके अन्य रिवर रे मिसी जाइए। बैतरणी हेड वाटर कैप्चर होती कोयल रिवर द्वारा। कोयल रिवर इज नाउ ए ट्रिब्यूटरी टू ब्राह्मणी। सिमिलरली ऋषिकुल्या वंशधारा नागावली ये तीन हेड वाटर कैप्चर होती तेल रिवर द्वारा। तेल रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी टू महानदी। ये जो नुआ रिवर गुड़ाक जो गुड़ाक एनसीएंट रिवर हेड वाटर कैप्चर करके तैयारी होती ताकू कहा जाउची रिवर्स ऑफ लेटर ओरिजिन। What's interesting about these rivers of later origin is that they usually flow in the direction opposite to this direction. So the direction of flow आपण देखंतु तेल रिवर टा एमती फ्लो करछि ए डायरेक्शन रे, कोयल रिवर टा एमिति फ्लो करछि, ईव रिवर टा एमिति फ्लो करछि। तेणु एमाने नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, तेणु एमाने ओल्डर रिवर रो ऑपोजिट डायरेक्शन ने फ्लो करछन्ती। द सेकंड क्लू बेस्ड ऑन व्हिच रिसर्चर माने कहउछन्ती जे ओडिसा रो बहुत रिवर बी हेडेड हेचन्ती कारण से रिवर मानकर माउथ कहले जोठी रिवर टा समुद्र रे मिसिची, रिवर रो माउथ तार कैचमेंट बेसिन अनुଯାयी बहुत बड़ अछि। तेणु गोटे छोट रिवर रो एब्नॉर्मली बिग माउथ रहिबार कारण एट वन पॉइंट ऑफ टाइम से रिवर टा बहुत बड़ थला, परे से हेड वाटर रो डिस्कनेक्ट होइकी श्रिंक हो जाइए, छोट हो जाइए एवं एबे धीरे धीरे फ्लो कर। या उपरे किछि एडिशनल पॉइंट्स आपण मानकु जानिबा दरकार, हुए तो एग्जाम रे एमसीक्यू रे डायरेक्ट क्वेश्चन पके दे पारे। तो आमे एठी गोटे दिन जानिबा दरकार ए जो सिमिलीपाल आ मेघसानी माउंटेन रीजन एटा होची डोम शेप्ड। को शेप्ड? डोम, गोटे डोम शेप रो एटा अछि। नेक्स्ट आपण जानिबा दरकार जे एठी जो अच्छी मांकड़नाचा मलगिरी गंधमार्तर माउंटेन रेंज ए जो रेंजटा एठू ए भीतर ए रेंजटा नॉर्थ साउथ अच्छी ऑलमोस्ट ए डायरेक्शन रे पहाड़ गुड़ाक अच्छी, एमती ईस्ट वेस्ट नहीं कहीं ना बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस फ्लूवियल एक्शन ऑफ बैतरणी एंड ब्राह्मणी। द हायर इरोसिव कैपेसिटी ऑफ ब्राह्मणी एंड महानदी has reduced the watershed between them to only 600 meters. The area of the mountainous region between Brahmani and Mahanadi river is only of 600 meter high, whereas the average height of the mountainous region is 900 meters. नेक्स्ट गोटे जिन मन रखिथांतु ये जो पोटांगी चंद्रगिरी माउंटेन रेंज, ये जो माउंटेन रेंज पूरा कोरापुट रू नहीं मलकानगिरी को मिसेकी जो रेंजटा दैट इज द हाईएस्ट रेंज इन ओडिशा। लोएस्ट आपण मन रखिले महानदी और ब्राह्मणी रेंजटा, आ पोटांगी चंद्रगिरी रेंज होची साउथ रे जोटा सदर्न पार्टटा दैट इज द हाईएस्ट इन ओडिशा। तार हाइट होची 900 रू 1350 मीटर्स। ओडिशा रा फर्स्ट 5 पीक्स ए रीजन रे देखा जाए पोटांगी चंद्रगिरी माउंटेन रीजन रे। आ ए रीजन डिवाइड्स नागावली एंड सबरी बेसिन। नागावली कोठी रहिला तळुको रहिला साउथ रे, सबरी कोलाब रहिला ऊपर। तेणु याकू के डिवाइड कला? पोटांगी चंद्रगिरी रेंज। विथ दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ मिडिल माउंटेनियस रीजन। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द प्लाटूज। तो प्लाटू कहले कौन? प्लाटू हैला गोटे टेबल लैंड बा गोटे टेबल भलिया जो लैंड टा देखा होतबो ताकू कहजिवो प्लाटू। माउंटेन हैला एम्ति, प्लाटू हैला जदि एमती अच्छी हाइट एलिवेशन अच्छी बट तार टॉप टा फ्लैट अच्छी, एटा कहजिवो प्लाटू। हमरो जो दुईटा प्लाटू देखा जाए से दुईटा ईस्टर्न घाट रो वेस्टर्न स्लोप रे ही देखा जाए। एटा हला ईस्टर्न घाट, एटा हला ईस्ट, एठी ही हमको दुईटा प्लाटू देखिबा को मिलुछि। ए प्लाटू रो एवरेज हाइट होची 300 रू 600 मीटर्स। आमे जानिथले माउंटेन रीजन रो एवरेज हाइट होची 900 मीटर। तो प्लाटू रो टॉप टा इरोड हो जाइछि बा घोरी हो जाइछि, तेणु ता हाइट रहला 300 रू 600 मीटर। याद रे मोस्टली लैटेराइट सॉइल देखा जाए, बहुत थिन सॉइल देखा जाए, रेड और लैटेराइट सॉइल। ई प्लाटू रे हमको एग्रीकल्चर बेसी देखा को मिले नहीं बिकॉज द सॉइल इज नॉट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन so far as mineral and forest resources are considered। तेणु मिनरल रिसोर्स पाई ओडिशार को रीजन टा बेसी इंपोर्टेंट पचारे आपण लिखिबे प्लाटू। आमर जनरली दुईटा प्लाटू आम देखुचे ओडिशा रे, गोटे हला पानपोष केउंझर पालहड़ा प्लाटू। ए जो प्लाटूटा एटा हला पानपोष केउंझर पालहड़ा प्लाटू।
अपर बैतरणी कैचमेंट बेसिन रे अछि एटा हला नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट रे अछि नॉर्दर्न पार्ट रे तेणु आपण नारू भी जानी परिवे पानपोष हला सुंदरगढ़ केउंझर तो केउंझर पालहड़ा अनुगुल तेणु ए एरिया रहिला आपण नॉर्दर्न पार्ट रे रहिला से पे मु कहली आपण पॉलिटिकल मैप रो टिके बेसिक आइडिया करिथबा दरकार आपण जानिथबा दरकार जे केउंझर कोठी रहउची भूल भी एठी मारिबेनी साउथ रे मारिबेनी तो सिमिलरली सदर्न प्लाटूटा कहूचे आम नवरंगपुर जयपुर प्लाटू नवरंगपुर जानी गोटे डिस्ट्रिक्ट जयपुर है कोरापुट पब तो यहाँ अच्छी सबरी नदीर बेसिन किसी बुक्स रे आम देखा पाचु जे अपर वंशधारा प्लाटू भी कर वंशधारा ये अच्छी वंशधारा आपंकर ये अच्छी तेणु से कहते ये जगार गोटे प्लाटू भी रहा बट आम से जिनस पढ़ा ना एग्जाम दृष्टि आमको सेटा दरकार नहीं नेक्स्ट आम देखा द वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड रोलिंग अपलैंड टा भी से ओडिशार को पार्ट रे अच्छी ईस्टर्न घाट रो वेस्टर्न पार्ट रे अच्छी ये जो येलो रे मार्किंग है सेटा हला रोलिंग अपलैंड यार हाइट होची 150 मीटर्स रु 300 मीटर्स 150 रु 300 मीटर्स है यार एवरेज हाइट बा एलिवेशन भी एग्जाम रे देथिबो आ एथिरे कोन रोलिंग काहे कहआ जाय ना ए लैंड टा फ्लैट नुहे एटा अंडुलेटिंग लैंड एमती एमती हेकी थाए ए रोलिंग अपलैंड को फर्दर 7टा पार्ट रे कैटेगराइज कराइछि रायरंगपुर अपलैंड केउंझर राउरकेला बलांगीर बरगड़ अपलैंड आस्के अपलैंड रायगढ़ अपलैंड मालकानगिरी अपलैंड ये सब डिटेल्स आमको जानिबा दरकार नहीं तापर आसिला फ्लड प्लेन नो एवरेज हाइट होची 75 मीटर रु 150 मीटर रोलिंग अपलैंड रो एवरेज हाइट थिला 150 रु 300 मीटर प्लाटू रो एलिवेशन बा हाइट थिला 300 रु 600 मीटर माउंटेनियस रीजन रो हाइट थिला 900 मीटर एवरेज कोस्टल रे हमर 75 मीटर टा होची हाईएस्ट काहे कि मु हाईएस्ट कहूची कारण एपट को तो आपण एमएसएल लेवल रे मिसी जिवे ना तेणु एट्टी तो आपण को लोएस्ट हाइट मिलिबो जेतेबेले आपण एपट को आसीबे हाइट बढ़ी बढ़ी आसीबो एठी तो आपण समुद्र पाखे अछंती तेणु आपण एमएसएल लेवल रे ही अछंती मीन सी लेवल रे ही अछंती आपण मन रखंतु फ्लड प्लेन नो एलिवेशन रहिला 75 मीटर रु 150 मीटर द फंडामेंटल डिफरेंस between floodplain and coastal plain is that floodplain are scattered in nature. They are narrow and mostly elongated. एटा मन रखि थांतु specific regarding floodplains of Odisha is that they are narrow and mostly elongated. आपन को true false भितरे एटा दे दबो ओडिसा रे 9टा मेजर floodplain अछि अगेन तार नाम लिखि आपन दरकार नहीं खाली जानी थांतु 9टा मेजर फ्लड प्लेन अच्छी बारिपदा आंदपुर तालचेर भुवन सोनपुर आठगढ़ आस्का रायगढ़ एंड मालकानगिरी वी हैव टू नो something about the canals different canals these are the 7 important canals that we have to remember प्रथम आसिला तालदंडा केनाल कटक रे अच्छी महानदी रु बाहरी तालदंडा केनाल को जगह रे जोब्रा कटक रे महानदी आउ देवी भितर एरिया इरिगेट हुए आपन खाली मन रखि थांतु एटा महानदी रे अछि कटक रे अछि बोली एतिकी पचारले पचारिबो नेक्स्ट आसला बरगड़ केनाल भी अछि महानदी रे एटा हीराकुद रु बाहरची एठी बरगड़ बलांगीर सोनपुर ए सब जगह इरिगेट हुए बरगड़ केनाल द्वारा हीराकुद रु बाहरची बरगड़ केनाल मन रखि थांतु नेक्स्ट आसला शासन केनाल सी भी महानदी ऊपर अछि संबलपुर और झारसुगुड़ा एरिया इरिगेट होछि नेक्स्ट इज द पुरी मेन केनाल एटा महानदी रे नराज रु बाहरची तालदंडा केनाल हमर बाहरची जोब्रा निकट रु एटा नराज रु बाहरची नेक्स्ट इज केंद्रापड़ा केनाल एटा बिरुपा रे अछि जगतपुर रु बाहरची कटक केंद्रापड़ा मझी एरिया इरिगेट होछि भद्रक केनाल अछि बैतरणी नदी रे ऋषिकुल्या केनाल ऑब्वियसली ऋषिकुल्या नदी रे एटा जंजाबली गंजाम रे अछि एटा मन रखथिबे नेक्स्ट असला स्प्रिंग बा छोट झरणा बड़ घाघरा सान घाघरा अच्छी केउंझर रे आपण ए डिस्ट्रिक्ट ना सब मन रखंतु एग्जाम रे डायरेक्ट एटा पके दबो केनाल एते इंपोर्टेंट नुहे कि स्प्रिंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द डिस्ट्रिक्ट नेम्स बड़ घाघरा सान घाघरा अच्छी केउंझर सप्तसज्जा रहला ढेंकानाल चंडीखोल स्ट्रीम गोटे अच्छी सेटा आइदर कटक रे न जाजपुर रे बहुत जगह रे बहुत जिनस लिखाई तो आम ऑप्शन देखी करवा तेणु ये मुझे लिखी कटक आप ऑप्शन नदी कटक नथिबो जाजपुर थिबो जाजपुर राइट मारिबे बरुणेई अच्छी खोर्धारे तप्तपाणी नारायणी निर्मलझर ए तीन टांग अच्छी गंजाम रे
ତପ୍ତପାଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାରିବେନି, ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ, ନୃସିଂହନାଥ ବରଗଡ଼ରେ, ହରିଶଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍। ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବା ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ, ଅଟ୍ରି ଆଉ ବାଘମାରୀ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ବଂଶକେଳା ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ, ତପ୍ତପାଣି ଗଞ୍ଜାମରେ, ଦରବଳ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଛି ନୟାଗଡ଼ରେ, ଦେଉଳିଝର ଅଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅନୁଗୁଳରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ୱାଟରଫଲ୍। ୱାଟରଫଲରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ବରେହି ପାଣି ଆଉ ଜୋରନ୍ଦା ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଦେବକୁଣ୍ଡ ବି ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ଖଣ୍ଡାଧାର ଅଛି ବଣେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍। କୋଇଲି ଘୋଘର ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ପ୍ରଧାନପୁରୀ ଅଛି ଦେଓଗଡ଼ରେ, କେଣ୍ଟାମାରୀ ଆଉ ପୁଟୁଡ଼ି ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ବୌଦ୍ଧରେ, ବୌଦ୍ଧଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଫୁଲିଝରନ୍, ଖଣ୍ଡାବଳଧର ଆଣ୍ଡ ରାବଣଧର ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ, ବୋଗରା ଅଛି କୋରାପୁଟରେ, ଡୁମଡୁମା ଅଛି ମାଲକାନଗିରିରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲେକ୍ସ। ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେକ୍ ହେଉଛି ଚିଲିକା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଏରିଆ 144 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟରରୁ 780 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାରି କରେ। ଏହାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 71 କିଲୋମିଟର, ୱିଡ୍ଥ ହେଉଛି 32 କିଲୋମିଟର। ତିନିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଲ୍ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ପାରିକୁଦ, ମାଲୁଦ ଆଉ କାଳିଜାଇ। INS ଚିଲିକା ଅଛି ନାଭାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ସେ ବି ଚିଲିକା ଭିତରେ ଅଛି ବା ଚିଲିକା କୂଳରେ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଚିଲିକା ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଇରାୱାଡି ଡଲଫିନ୍। ଇରାୱାଡି ଡଲଫିନ୍ କୋଉ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଡଲଫିନ୍ ସେଇଟା ପଚାରିବ ଏକ୍ଜାମରେ, ଆପଣ ଇରାୱାଡି ଡଲଫିନ୍ ବୋଲି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡ ନର୍ଥ ପୋଲରୁ କ୍ୟାପ୍ସିଆନ୍ ଲେକ୍ରୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାକୁ ବିହଙ୍ଗ ବିହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅଂଶୁପା ଲେକ୍। ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍, କଟକର ବାଙ୍କି ପାଖରେ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଲେକ୍ଟା ଆଉ ଏରିଆ ତାର 141 ହେକ୍ଟର। ସର ଲେକ୍, ସରଟା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ଯୋଉଟା ପୁରୀରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କାଞ୍ଜିଆ। କାଞ୍ଜିଆ ହେଉଛି ସେଇ ଲେକ୍ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଯାଇକି ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖରେ ବୋଟିଂ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଲେକ୍ର ନାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି 66 ହେକ୍ଟର ଏରିଆ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଟ୍ଟ ଲେକ୍। ପଟ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍, ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ଛତ୍ରପୁର ଗଞ୍ଜାମରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଜର୍ଭେୟର୍ସ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ଏହା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀ ପଢ଼ିବା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲେକ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍, ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି। କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି କୋରାପୁଟରେ। ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ା ରିଜର୍ଭୟର ଦେଖିବା। ରିଜର୍ଭୟର ହେଲା ବାଲିମେଳା ଅଛି ସିଲେରୁ ରିଭରରେ, ରେଙ୍ଗାଲି ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ, ମନ୍ଦିରା ଅଛି ଶଙ୍ଖରେ। ମନ୍ଦିରା ରିଜର୍ଭୟର ଅଛି ଶଙ୍ଖ ନଦୀରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଲ୍ସ, ସମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଲ୍ସ। ଏଇଠି ଯେତିକି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ର ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ୟାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଟପ୍ 7ଟା କି ଟପ୍ 10ଟା, ୟା ମଝିରେ ବି ବହୁତ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆମକୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଏ। ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦେଓମାଳି ଆଟ୍ 1672 ମିଟର୍ସ। ତାପରେ ଅଛି ଗାଲିକୋଣ୍ଡା 1643 ମିଟର, ସିନକାରାନ 1620 ମିଟର। ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି କୋରାପୁଟରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନିୟମଗିରି, ଇଏ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା ମିଶିକି। ତାପରେ ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଇଏ ଅଛି ଗଜପତିରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମେଘାସନ ବା ମେଘାସନୀ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛି, ନର୍ଦର୍ନ ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦଣ୍ଡକୀୟ ନୃସିଂହନାଥ, ଏ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି ବରଗଡ଼ରେ। ଆଉ କପିଳାସ ଫାଇନାଲି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ର ହାଇଟ୍ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଓମାଳିର ହାଇଟ୍ଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାକି କେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍, ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏମିତି ମ୍ୟାପ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଡାଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା will be on river system and that is also going to be a very good video, you will enjoy that। ଆପଣ ଫାଇନାଲି ଯଦି ନୋଟ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନୋଟ୍ସ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ, ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। ଯଦି ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ଜଏନ୍ କରିଛି, ମୋତେ ନୋଟ୍ସ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ।
आजिर भिडियो को एठी शेष करिबा। धन्यवाद।